Well, I'm here for the Smile Foundation, and this is a charity event, and this is I think amazing. It's organized by Jhelum and Narayan Jewelers, and this is a charity event. So whatever sales they do today, the jeweler or the clothes, whatever sales they're gonna do, there's some percentage which is gonna go to the charity. So I think it's going on girls' education. I think this is an amazing cause, and I'm definitely gonna support it. And this is second time. This is my second time with Smile Foundation, and I always love to be there on the events because I myself support them. And this is an amazing cause, and of course we are here to support them. तो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है इंडिविजुअल की द्वारा। तो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कौन सा ऐसा इशू लगता है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, अगर आपको अपने हिसाब से करना हो, जब भी आपके पास टाइम हो, अकॉर्डिंग टू योर? See, I don't think so. You should choose. I think आपको doesn't matter आप किस चीज़ में contribute करते हो, doesn't matter कितना contribute करते हो. अगर आप एक छोटा step भी लेते हो, that's also big thing for you. So I don't think so. You should choose and see कि अच्छा आप कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ और when it comes to especially foundations, so I don't think so आपको उनको list में डालना चाहिए कि okay this is the number one, this is the second one, I'm gonna go to number one or I'm gonna go to second one. So I think आपसे जितना हो सकता है आप करिए, डजेंट मैटर व्हाट आर यू डूइंग. अगर आप छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, दैट्स ऑल्सो बिग थिंग फॉर देम एंड फॉर द एजुकेशन. और you know, like me myself, I'm from Punjab, so I have my own charity, I have my own thing. Like whenever I feel or whenever I have a time, मैं वहाँ पे लड़कियों की स्टडीज़ के लिए उनको कंट्रीब्यूट करती हूँ, उसके लिए कंट्रीब्यूट करती हूँ. एंड ऑल्सो ऑल द पुअर फैमिलीज़ जो हमारे गांव में रहती हैं, पुअर फैमिलीज़, यू नो, लाइक they still this treat girls and boys differently from each other, and I go personally to them, and you know, I'm very, I think, big in giving lectures. I'm really sorry. So I just try to talk to them and try to convince them what all they can do. अभी हमने पंजाब में एक सिलाई सेंटर खोला है जो गरीब लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां जो ऑब्वियसली जो उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन के लिए उनको पे नहीं दे सकते हैं. सो हमने एक सिलाई सेंटर खोला है. इसके अलावा वी हैव ए फाउंडेशन जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी वी आर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर द girl child, so whatever their parents are earning, like maybe a monthly or weekly, whatever, how much they can deposit in their account, they should do it, like maybe $500 or $1,000 or whatever you want to do it, you just do it. जब लड़की 18 साल की होती है वही पैसा उनकी एजुकेशन में जाएगा, और शी वांट्स टू गेट मैरिड, उसके मैरिज में खर्चा किया जाएगा, और शी वांट्स टू डू द एजुकेशन, शी वांट्स टू डू एनीथिंग, दैट मनी इज़ लाइक हर मनी. सो आई थिंक डजंट, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो. यू शुड चूज इट, जितना आपसे हो सकता है आप कीजिए, एंड जस्ट बी सपोर्टिव, आई फील. And lastly, what's going on professional front? Are you working on any project or reading any script as such? I mean, Well, I won't talk much on my professional things here because today I'm here for the Child Foundation, and I would like to talk only about the Child Foundation. Coming back to work, yes, I have few projects lined up, so I will discuss on, I think, maybe next interview, not here today. Thank you. Foundation they are going to help out the girl child for education and other initiatives. तो क्या कहना चाहेंगे, कितना वंडरफुल इनिशिएटिव है आपके साथ? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और कैंपेन का नाम है शी कैन फ्लाई, विच इज़ अ वेरी गुड कॉज. हर लड़की का एक सपना होता है, मुझे लगता है कि हर लड़की को अपने सपना जीने का पूरा अधिकार है. सो मेरे भी कुछ सपने थे और मैं उन्हें जी रही हूँ, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे पेरेंट्स, ऐसी फैसिलिटीज़ हर लड़की को नहीं मिलती है जो स्माइल फाउंडेशन के थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू लड़कियों को मिल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड या, सो आई एम हैप्पी टू बी हियर, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर. Nowadays, like looking very beautiful, first of all. Thank you so much. Nowadays, like I think you are taking very great care of your health and very conscious to your health and figure nowadays. कितना क्या मतलब अपने like exercise and all you are doing? बिल्कुल, हर लड़की को अपने, इनफैक्ट हर किसी को अपने फिगर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए कोशिश करनी चाहिए. मैं भी रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छा खाना और
पानी ज़्यादा पीना, और आई थिंक हर इंसान को अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, तभी वो किसी और का ख्याल रख पाएगा। सेलिब्रिटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब। इम्पॉर्टेंट अब हर इंसान के लिए आई थिंक ज़रूरी है, ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते, पर मुझे लगता है कि हर किसी को ये सब करना चाहिए टू बी फिट। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लिम दिखना है या आपको खूबसूरत, आप अंदर से फिट रहेंगे तो आप अपने आप खूबसूरत दिखाई देंगे, आप हेल्दी होंगे तो आप अपने आप अच्छे दिखाई देंगे। ओके, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर? क्योंकि हमने देखा था आप अचानक से आप गायब हो गए और अब दिख रहे हैं आप बहुत टाइम बाद। सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइक टू शेयर? बिल्कुल, अभी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आई कांट रिवील इट। आप डायरेक्ट देखिएगा। मूवी और सीरियल? आई डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग। एनी हिंट फॉर योर फैंस? टीवी देखते रहिए। थैंक यू। Passion House and Smile Foundation, this initiative supporting girl child education and other initiative, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक इट्स ब्रिलियंट बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर इंसान अगर अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता रहे किसी न किसी तरह से, सो किसी को भुखमरी से या गरीबी से गुजरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई एम सो प्राउड ऑफ देम दैट दे आर डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड दे कॉल मी एंड आई जस्ट कुड नॉट से नो बिकॉज आई लव these kids. They are fantastic and I don't want to miss any opportunity to meet them. And Smile Foundation, I feel are very genuine and they do a lot of real work, on field. And I have known Maya and these girls. They really work hard to give these kids the best life that they can. And I'm here. If मेरे यहाँ होने से कुछ थोड़ा भी फ़र्क पड़ता है, कोई सेल डबल हो जाती है, कुछ हो जाता है, I'll be more than happy कि मेरी वजह से या मेरे थोड़े से सपोर्ट की वजह से या इन सब लोगों की सपोर्ट की वजह से उन बच्चों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा जिनको अदरवाइज़ कोई उतनी फैसिलिटीज़ नहीं देता। फाउंडेशन की बात करें या बच्चों की बात करें, is there any issue in your mind that celebrity has to talk right now? Is there any issue in my mind that celebrity? ऐसा कोई जैसे रेप केस देखते हैं या कोई भी बड़ा इशू होता है, ये स्वच्छ भारत कौन सा कॉज है जो मेरे दिमाग में चल रहा है? Well, I am already supporting a cause that's called humanity. My web series Abdul Ki Sun talks about that. I made a web series for it because I thought as an actor, what better can I do? मैं एक्टिंग करके एक्सप्रेस कर सकती हूँ और हमारा is ironic or strange, weird and happy also. Today is our last season finale, released, and it's also called Smile. So it was such a coincidence कि मुझे नहीं पता था कि मैं आज वो रिलीज़ होगा और आज मैं स्माइल फाउंडेशन के लिए यहाँ खड़ी होंगी. So yeah. Every episode has a tagline. Yes. So what was the next tagline you have seen? मेरी एपिसोड नहीं, कोई टैगलाइन तो नहीं है, बट मेरी एपिसोड अलग अलग ह्यूमन फीलिंग्स पे बेस्ड हैं. वो फीलिंग्स जो हमें चेंज करती हैं, बदलती हैं, किसी न किसी तरह से हमारे अंदर बदलाव लाती हैं. ये ह्यूमैनिटी की छोटी छोटी सिंपल कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स बातें हैं जो इतनी आसान है, बट हम बिकॉज इतना कुछ चलता है दुनिया में हम उसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. सो ईच एपिसोड ऑफ माइंड जस्ट टॉक्स अबाउट दैट फीलिंग और वो उसी फीलिंग पे बेस्ड है और उस फीलिंग से कितना कुछ बदल सकता है उस पे बेस्ड है. लास्ट एपिसोड इज़ कॉल्ड स्माइल. इट इज़ एज सिंपल एज not to miss a smile. How a smile can see. Just now I smile और आपने फट से हंस दिया. So that's how fast उसका reaction होता है. So that's how simple and beautiful the film is. ओके सर, मैम ये तो हो गई फाइनल एपिसोड. आज फाइनल एपिसोड हो चुके हैं, तो नेक्स्ट कब आ रही है? अब यार सीज़न 2 पे हम काम कर रहे हैं. बहुत सारे किस्से हैं दुनिया में जिनको बनाया जा सकता है और मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल हर इंसान को इसके बारे में इस वक्त बात करनी चाहिए. आप देख रहे हैं कि कितना कुछ हो रहा है दुनिया में. यू रियली फील लॉस्ट. समटाइम्स आई फील लॉस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग. एंड इफ़ आई थिंक कि मुझे लोग कहते हैं आप सेटल कब होंगी, बच्चा कब पैदा करेंगी, मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को किस दुनिया में लेके आऊँगी, क्या दूँगी उसे मैं. सो पहले मैं अपना दुनिया तो बेटर बनाऊँ किसी तरह से, अपनी तरीके से, या अपनी जो जितना मैं चेंज कर सकती हूँ. और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, एक इंडिविजुअल बस अपना काम कर ले, बहुत हो गया, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. सो द सेकेंड सीजन वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी आर ट्राइंग टू कीप इट लिटिल कॉमिकल दिस टाइम, क्योंकि मैंने भी बहुत सीरियस काम करके थोड़ा मुझे भी अफेक्ट होने लगा है.
बाकी मेरी एक फ़िल्म पे काम चल रहा है जो शमा सिकंदर प्रोडक्शन के अंदर बन रही है। मेरी एक फ़िल्म है जो ऑलरेडी सारे फेस्टिवल्स के लिए जा चुकी है, और जब उसके बारे में मुझे बोलना अलाउड होगा मैं आप सबसे बोलूँगी, बट दैट्स समथिंग दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ एंड आई कांट वेट टू शेयर इट। थैंक यू। थोड़ा नहीं क्या बता रहे, एक ट्रेन तो रखने का कैमरे फोटो ज़्यादा रेडी रेडी अजय रेडी अजय तक कैमरे मैम एक लुक सामने देख लीजिए, एक लुक दीजिए ना सामने। तमाम यस मैम Thank you. About this new initiative like taken by the JLM and Spine Foundation Kids, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? Definitely, I mean getting associated with the Kids of Smile Foundation is always a very beautiful thing to do. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ही काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। कभी स्माइल फाउंडेशन के लिए वॉक किया, गुरमीत ने जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था इस साल, और it always feels good to bring smile to the face and to initiate a cause which helps a girl child to grow. मुझे लगता है इंडिया में ऐसे कॉजेज़ की बहुत ज़रूरत है, और झीलम हैज़ कम अप विथ समथिंग वेरी नाइस एंड यूनिक। आई थिंक जहाँ पे ग्लैमर और अच्छे कपड़े, तो वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं, और टू गेट एसोसिएटेड, आई मीन गेट स्माइल फाउंडेशन ऑन बोर्ड विल गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन टू देम। तो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। क्या कहना चाहेंगी पलटन के बारे में? आपकी गुरमीत की पिक्चर आने वाली अगले हफ्ते रिलीज़ हो रही है, सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। मैंने पर्सनली फ़िल्म तो देखी नहीं है, पर मुझे पता है मोर और लेस, और आई एम लाइक दिस वुड बी समथिंग वेरी यूनिक फॉर गुरमीत, और बहुत अर्ली हो रहा है उसके करियर में। बहुत लोगों के थोड़े लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ऐसे आर्मी फिल्म करने को मौका मिलता है। गुरमीत के एकदम इनिशियल स्टेज में वो आर्मी फिल्म कर रहा है। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड। हम दोनों बहुत नर्वस है, एंड आई एम थिंकिंग आप सब भी है, उसके पास इतने गुड विशेस है, तो हम सब साथ में देखेंगे और देखेंगे क्या करते हैं। मैं तो शायद रोऊंगी। थैंक यू। थैंक यू।